Hello students, today we are covering our next topic, that is of neurological disorders. Very first is Parkinson's disease. So let's start. Now what actually Parkinson's disease is? So Parkinson's disease is a progressive, slowly progressive and degenerative disease of neurons, in which the neurons producing dopamine in the substantia nigra part of the brain is dies or destructive. Now what actually a Parkinson's disease is? It is a kind of movement disorder which is mainly due to destruction of dopamine producing neurons in the substantia nigra. What actually substantia nigra is? Substantia nigra is a part of our brain, which is mainly substantia means substance and nigra means black, a darker substance that is present in our brain. It is a part of basal ganglia that controls the movement and connects to motor cortex. Parkinson में it gradually disappears. Now what are the actual risk factors that are associated with the Parkinson's disease? First is the age. Second, it can be due to heredity, environmental exposure to toxins, MPP, NTPX, etc. And men are more prominent than females. Talking about the symptoms, सबसे पहले आपका आता है tremors, that is involuntary shakiness, or it can also be termed as pill rolling. It is mainly due to resting condition. It is also termed as resting tremor, that is present at rest and diminish with movement. Next is muscle rigidity is to posture, almost expressionless face. Next is bradykinesia, slow movement, hypokinesia, less movement, akinesia, absence. They all are completely associated with difficulty initiating movement. Legs freeze up, or stiffening gait, slow movements, postural instability, problems with the balance can lead to falls. So these are some kind of most prominent symptoms. Some others are depression, dementia, memory loss, sleep disturbance, difficulty in smelling due to dysfunction in other parts of the brain such as prefrontal cortex, dysfunction in other neurotransmitters such as acetylcholines. So these are the clinical features or symptoms associated with the Parkinson. Now talking about the pathophysiology. As I earlier told that substantia nigra is a part of our brain that is mainly associated with basal ganglia. It is divided into two parts, pars reticulata and pars compacta. Now the pars compacta is affected in the Parkinson disease. That is mainly pars compacta connects with the striatum, and with the help of dopamine it leads to the movement. But in the case of Parkinson this is affected, and then this nigrostriatal pathway is being deteriorated, which helps to stimulate the cerebral cortex for the movement. This part is affected and which leads to movement disorders. So this is the exact pathophysiology of the Parkinson disease. Now how to diagnose it? It is mainly be diagnosed by neurological examination through clinical symptoms and signs in which we talked about previously. So next, what kind of treatment strategies is being adopted? So very first medication is levodopa, that is being a dopamine precursor. As it is associated with the degeneration of dopamine, so we can use the dopamine precursor, that is levodopa, which reaches the brain and converts into dopamine, restoring the deteriorated dopamine in the substantia nigra and striatum to making it to the normal levels. Second is peripheral decarboxylase inhibitors, that is carbidopa, benzyride. With dopaminergic agonists like bromocriptine, rapinol, pramexole, they all imitate the actions of dopamine at the dopamine receptors in the striatum.
फिर मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स लाइक सेलिजीन, रेसेलाजीन, डोपामीन फैसिलिटेटर्स लाइक एमेंटाडीन, फिर डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी, सर्जरी in critical cases like cryoophthalmotomy, pallidotomy, deep brain stimulations is being used as strategies for the treatment of Parkinson. Hello students, now we will talk about the next neurodegenerative disorder, that is Alzheimer's disease. So let's start. So before starting the Alzheimer's disease, I would like to tell you about a condition called dementia. What actually dementia is? Dementia is a set of symptoms which indicates poor memory and difficulty in learning, and this dementia is the most common cause of Alzheimer's disease. Now what Alzheimer's disease is? Alzheimer's disease is kind of neurodegenerative disorder disease in which there is memory loss, particularly in the elderly patients, which further proceeds with alteration in memory loss, mostly poor progression, loss of coordination, aphasia, disorientation, and completely bedridden, and ultimately serious condition leads to death. Now simply, Alzheimer's disease is a kind of neurodegenerative disorder in which the neurons of the brains are being continuously degenerated, particularly of the cortex region, and this kind of condition is mainly related to age, that basically affects the cognitive function, that is actually the person is not able to resolve the simple things and not able to memorize the things and have difficulty in learning. मतलब ये एक टाइप का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या है, हमारे ब्रेन सेल्स के न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली डिजेनरेट होते रहते हैं, साथ ही साथ कहाँ के, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ब्रेन के. ये मोस्टली हमारे एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है एक्टिवली. अब बात करते हैं चेंजेस इन ब्रेन. व्हाट आर द चेंजेस दैट आर बीइंग सीन आफ्टर द डिजीज. तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ब्रेन में कौन कौन से चेंजेस रह रहे हैं. नॉर्मल न्यूरॉन्स कैसे थे और न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं. ये टेंगल्स दो तरीके से डेवलप होते हैं, प्लेक्स और टेंगल्स. प्लेक्स हमारे हो गए बीटा एम्लॉयड और दूसरे हो गए हमारी टेंगल्स. प्लेक्स और टेंगल्स ये दो डिजेनरेशन करते हैं हमारे न्यूरॉन को, एक बाहर से और टेंगल्स अंदर से, जिसकी वजह से क्या है, कॉर्टिकल श्रिंकेज होता है. मतलब ब्रेन में एट्रॉफी डेवलप हो जाती है, जो ब्रेन का गायरी पार्ट प्रोजेक्शन वो श्रिंक कर जाता है और सल्की पार्ट हमारा ओवरब्रिज कर जाएगा. इवन द वेंट्रिकल जिसमें क्या है, फ्लूइड पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो भी एनलार्ज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे कि डिमेंटिया, मोटर लॉस, डिसओरिएंटेशन. Even the person is not able to fulfill the normal circumstantial conditions. सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला माइंड सिम्टम आता है मेमोरी लॉस से, कन्फ्यूजन. शुरू में तो आपको कोई सिम्टम इतना शार्प डेवलप भी नहीं होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है. इवन द पर्सन इज नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि उसने सुबह नाश्ते में भी क्या खाया था. फिर धीरे धीरे ये लॉस रहता है हमारे मोटर स्किल्स और लैंग्वेज पे आता है. धीरे और लॉन्ग टर्म पे ये कंप्लीट मेमोरी लॉस में डेवलप हो जाता है, जिसमें हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ के साथ साथ हमारे पिछली ज़िंदगी का भी कुछ याद नहीं रहता. कुछ टाइम के और प्रोग्रेशन के साथ ये कम्प्लीटली डिसओरिएंटेड हो जाता है हमारा पेशेंट. कम्प्लीटली एक रिस्क डेवलप कर लेता है कहीं वो खो ना जाए. एट लास्ट वो बेड रिडन हो जाता है. इवन it can lead to death, which may be due to other kind of infections also. डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम MRIs के थ्रू, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू देख सकते हैं हमारे ब्रेन के कौन कौन से रीजन में प्लेक्स और टेंगल्स डेवलप हो रहे हैं. CT स्कैन के थ्रू, अदर काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, फिजिकल एवेल्युएशन, मेमोरी टेस्टिंग,
इन सब सारे टेस्ट के थ्रू हम इसे ईजिली तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक डायग्नोस कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इस कंडीशन से ओवरकम किया जा सके। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या है, डिमेंटिया एक मेन कॉज है अल्जाइमर्स का। तो डिमेंटिया कैसे प्रोग्रेस होता है? ये प्रोग्रेस होता है दो तरीके से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेग्स एंड टेंगल्स। अब ये प्लेग्स और टेंगल्स एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले बात करते हैं प्लेग्स की। प्लेग्स कैसे डेवलप होते हैं और प्लेग्स एक्चुअल में है क्या? हमारे न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। उस पर हमारा एक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है? न्यूरॉन्स की हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर में। ईजिली अपने लाइफ टाइम में ये यूजुअली यूज़ होता रहता है, ब्रोक डाउन होता है और ईजिली रिसाइकिल होता है। अब क्या है, ये जो प्रोटीन है ये मेनली दो टाइप के एंजाइम से ब्रेक डाउन होता है। पहला आउटसाइड द सेल अल्फा सीक्रेटेज और इनसाइड द सेल गामा सीक्रेटेज। ये क्या है, ये इजीली इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं और सॉल्युबल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या है, जब ये अल्फा सीक्रेटेज हमारा कंबाइन हो जाता है बीटा सीक्रेटेज के साथ, तब ये नॉन सॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो डेवलप करता है स्टिकी टाइप के बीटा एमिलॉइड प्लेक्स को, जो कि क्या है, चेंजेस ऑफ एमिलॉइड इनटू बीटा सीक्रेटेज की वजह से हुए हैं। ये क्या करते हैं, ये क्लस्टर्स फॉर्म कर देते हैं बिटवीन द न्यूरॉन्स, और जो क्लस्टर्स फॉर्म होंगे तो न्यूरॉन के बीच में ये सिग्नलिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, डिमेंटिया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। ये और क्या करते हैं, एक टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेस को भी इनिशिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में भी ये स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डेवलप करते हैं एमिलॉइड एंग्लोपैथी, जो मेन कॉज है हमारा हीमरेज इन द ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंगल्स की। तो हमारे न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स भी हमारा साइटोस्केलेटन से बना है। ये साइटोस्केलेटन में एक टाइप का प्रोटीन होता है टाउ प्रोटीन, जो क्या है, न्यूरॉन को स्ट्रक्चरली सपोर्ट देता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ब्रेक डाउन नहीं होने देता, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। लेकिन क्या करता है, ये टेंगल्स क्या होते हैं, काइनेज को रिक्रूट करते हैं, काइनेज एंजाइम को, जो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है टाउ पे, और ये टाउ क्या है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली फॉर्म करते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल। ये टेंगल इनसाइड द न्यूरॉन्स डेवलप होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एपोप्टोसिस हो जाती है हमारे न्यूरॉन्स की। ये एक अदर लीडिंग कॉज है हमारे अल्जाइमर्स डिजीज़ का। तो ये होती है हमारी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अब तक नहीं है, लेकिन कुछ टाइप की ड्रग्स हैं जो सिम्टम्स को रिलीफ करने में बहुत फ़ायदा देती हैं। जैसे कि हमारा मेमेंटीन हो गया, ये हमें इम्प्रूव करता है मेमोरी, अटेंशन और लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन को। कुछ टाइप की एंटी एंजाइटी ड्रग्स हो गई, अल्प्राजोलाम एक्सेट्रा। कुछ टाइप की एंटी डिप्रेसेंट हो गई, फिर कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हो गए कुछ टाइप के, प्रिवेंटिंग एसिटाइलकोलिन फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन। ये इम्प्रूव करते हैं हमारी मूड, मेमोरी और लर्निंग को। थैंक यू।